अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर ख़ान और आप देख रहे हैं 39 न्यूज़ स्पेशल। इस वक्त मैं कसूर के इलाका जलोब की में मौजूद हूं। यहाँ पे हालात ये हैं कि दरिया सतलुज का जो पानी है बिल्कुल जो आसपास के गांव हैं उनके करीब आ चुका है और इन लोगों ने 3 माह से कैसे ज़िंदगी गुजारी है इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 3 माह से सैलाब की जद में आए हुए हैं और यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम मां जी मुझे अस्सलाम। बताएं कितना टाइम हो गया है ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ? ਪੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਜਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸੱਤਿਆ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਪਾ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਜਾਲ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਟੋਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਟੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਖਦਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਰਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿਨੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਦੇ। ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜੀ ਭੈੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਡੁੱਬ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਨੂੰ। ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾਂ ਤ੍ਰੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਡੇ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੁਰਕੀ ਚੱਪਾ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਮੁੱਠ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਗੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਾ ਲਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਦੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆ ਮਸੀਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਗੱਟੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਟੀ ਵੀ ਗੱਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ 20-25 ਘਰ ਹੈਗੇ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਲੰਮੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਕਾਨ ਟੱਠੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਡੁੱਬ ਟਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਣੀ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਂ ਟੱਪ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਐਸੀ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ? ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮਾਰੋ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ खोटा रुपया ना वो भी नहीं सानू उन्होंने दिता। जी आपने सारी बात सुनी है। मरीम नवाज़ की अगर बात की जाए तो मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं वो अप्रिशिएट करती हैं अपने अदारों को। वो कहती हैं मेरे अदारों ने इतना अच्छा काम किया, इतने लोगों की जानें बचा ली, लोगों के घरों में राशन पहुँच रहा है, लोगों के घरों में हर चीज़ मुहैया की जा रही है। लेकिन यहाँ पे हालात जो हैं वो उसके बिल्कुल मुतबादिल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आवाम का ये कहना है कि यहाँ पे 3 माह से हम ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि सारा दिन इंतज़ार करते हैं शायद कोई बाहर से आए और आके इनको कुछ खाने के लिए कोई राशन वगैरह दे। मज़ीद लोग यहाँ पे मौजूद हैं। माँ जी की हाल है? अल्लाह शुक्र। माँ जी मैं दसो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो? पुत्र बूहे के बन मारिया सी मारते ते ओ आ इधर बैठे हैं। सही और असी किधर जाना है? उत्थे ही बह रहना तो उत्थे ही आपदा वो पानी दरिया का पीने पे। दरिया का पानी पी रहे हो? गंदा पानी? और की करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। भुख मार तो की करिए? दरिया का ही पीते रहे। गंदा पानी, गंदा बीमारियां 2 महीना हो गया, पौने 2 महीने 2-3 महीने तो गंदा पानी। दरिया का ही पीने पे। नलकियां जी गंदा पानी आ रहा है? नलकियां च भी गंदा ही आ रहा।
ਨਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਲੰਘ ਗਿਆ? ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਟਾ ਹਟਾ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ टा। तो किस तरह की करोगे? सलाम मुतासरीन में साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक हुकूमती इक़्तिदार के लोग यहाँ पे पहुँचे, इनके कोई राशन वगैरह या इनको कोई इमदादी कार्रवाइयाँ इनके मुकम्मल की गई। मुझे बताएं कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। मीर साहब कौन सा गाँव है आपका? बिया सिंह पिंड है मेरा पिछे। अच्छा मैं दसो हुकूमत इत्थे आई है, हुकूमत ने कोई इत्थे तुहानू राशन वगैरह तारा कोई मदद की थी? हुकूमत ने कोई राशन की मदद नहीं की, जिन्होंने पिछों किया तो बड़े बड़े नंबरदारां ते चौधरीਆਂ ਨੂੰ इधर दिता, उन्होंने आपके रिश्तेदारां ਨੂੰ बेलियां सज्जनां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਮ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਮਲਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬਸ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ, बस ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ पता ही नहीं है। मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो यहाँ पे राशन लेके पहुँची हैं। बट फाउंडेशन के जो सदर हैं मेरे साथ मौजूद हैं। बट साहब आप यहाँ पे इतनी दूर कसूर के इलाकों में, वो इलाके जहाँ पे हुकूमत भी नहीं पहुँची, वहाँ आप पहुँचे हैं, वहाँ पे आपने राशन तकसीम किया, क्या कहना लोगों का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसीलिए कोशिश की कि हम जो राशन लेके आए ना, हम साथ जाएं, राशन साथ लेके जाएं, और आगे हमने जो है ना वो अपने दोस्तों से मिलकर जो है ना इंतज़ाम किया था। जब इंतज़ाम किया तो उनके साथ गए, फिर घर वालों के पोजीशन देखी कि कौन हकदार है और कौन नहीं है। आपको किसी एक बंदे ने भी कहा कि हुकूमत ने यहाँ पे राशन पहुँचाया, कुछ चीज़ यहाँ पे पहुँचाई? हर बंदे ने यही कहा जी हमारे तक कुछ नहीं पहुँचा। कुछ लोगों ने कहा है कि ये इलाका जो है ना ये ऊपर वाला है, दरिया सतलुज के पार है, इसलिए पार कोई भी नहीं आता। पार कोई भी नहीं। और जो 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 घर गिर गए हैं वो भी हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है ना वो उधर ठेके पे ज़मीन ली हुई है, लेकिन वो ज़मीन का मालिक कहीं और है, तो वो भी कुछ लोग ज़रा ज़्यादती कर रहे हैं कि अपना वो दिखा के वो कह रहे हैं हमने वेरिफिकेशन की है, लेकिन हमने कोशिश अपनी पूरी की है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये राशन पहुँचे। आप क्या समझते हैं कि मरीम नवाज़ के सिर्फ दावे ही हैं कि जो कहती हैं कि मैंने गरीब के घर घर तक राशन पहुँचाया, जिनके घर गिरे हैं उनको 5-5 लाख रुपए मैंने दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? भाई बात ये है कि मैं कोई सियासी पार्टी का कोई मेंबर या कारकुन नहीं हूँ। मैं एक वेलफेयर पे काम कर रहा हूँ जो कि खिदमत इंसानियत पे काम कर रही है, जो कि लोग हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, वो हम खुद ही वेरिफिकेशन करते हैं इंसानियत के लिए, कि खुद देखते हैं, खुद जाते हैं और देखते हैं कि अगर कोई बंदा हकदार है तो फिर उसकी मदद की जाती है। तो मैं हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी जो वेलफेयर है ये सियासत से पाक है और फ़िरका वरीयत से पाक है। ये आपने सारी बात सुनी है। ये देखें कि ये बेरा है जिसमें बैठते हैं और बैठ के ये जो जितने भी मुसाफिर हैं जो इस इलाके के मुतासरीन हैं वो यहाँ से दूसरे इलाके में जाते हैं। ये दरिया सतलुज के किनारे पे मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में अभी भी पानी का रेला जो है वो अपनी शिद्दत से चल रहा है, काफ़ी बड़ा पानी का रेला चल रहा है, और आसपास के इलाके जो हैं अभी भी पानी की जद में आ रहे हैं। और यहाँ से हम वापस जाएंगे और यहाँ से आपको सारे हालात दिखाए। आवाम का ये कहना है कि मरीम नवाज़ की यहाँ पे कोई टीम नहीं पहुँची, कोई राशन नहीं पहुँचा, कोई उनका सलाम मुतासरीन के लोगों के पास कैंप नहीं मौजूद, लोग घरों के बाहर रह रहे हैं। तो इनका कहना है, ये गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि मरीम नवाज़ को चाहिए कि यहाँ पे आए और आगे यहाँ के हालात भी देखें। जी इधर उठा के लाए हैं, तकरीबन 4-5 एकड़ से हम इसको उठा के लेकर आए। रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद हैं, और वो देखें ट्राला जो है ना उधर फंस गया, निकला नहीं जा रहा, और रास्ते बंद है। तो ये नौजवान माशाल्लाह हिम्मत की और ये हम पैदल लेकर आए सारा उठा के। अच्छा, ये अवाम जो है ये कह रहे हैं कि हमें कोई हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई चीज़ नहीं यहाँ पे मुहैया की जा रही, कुछ नहीं यहाँ पे पहुँच रहा। तो ये आप अपनी मदद आपके तहत आज ही लेके आए या डेली की कुछ चीज़ें लेके आते हैं? नहीं देखें, मैं तो फर्स्ट टाइम लेकर आया हूँ इधर। मैं मोमिन वेलफेयर फाउंडेशन और अलदानिश वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ औला खोताड़ से, मैं तो आज इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे मुकामी लोगों से पता चला इधर ना तो गवर्नमेंट के कोई इमदादी टीमें आती हैं, इधर पता चला था कि कुरान और सुन्ना की टीम 20 दिन से 25 दिन से इधर मेहनत कर रही है, अकेली एक टीम, और बाकी कोई टीमें इधर नहीं आ रही, क्योंकि ये मुश्किल है, दूर है, इधर नहीं आते लोग, पीछे ही तकसीम करके चले जाते हैं जो मुस्तहिक नहीं है।
सही मुस्तक ये लोग हैं कि इतनी दूर दराज से और दरिया का सफ़र दरिया क्रॉस करके जो है ना आते हैं, बड़ा मुश्किल आप देख सकते हैं, ट्राले फंसे हुए हैं, लोग बच्चों ने नौजवानों ने जूते उतारे हुए हैं, कपड़े गीले हो गए हैं। और माशाल्लाह से इधर से ये कसूर की जो टीम है कुरान और सुन्ना की बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह पाक इन सबको जज़ा खैर दें। और ये हम भी अपने गाँव की तरफ से इमदादी सामान लेकर आए हैं और इंशाल्लाह हम ये जो सैलाब ज़दगान हैं इनकी मुश्किल वक्त में इनके साथ बराबर के शरीक हैं, बराबर खड़े हैं। जी आपने सारी बात सुनी है। ये सामान जो ये जो खाना है, जैसे आपको माँ जी ने बताया कि ये खाना एक टाइम का आता है और ये खा लेते हैं और उसके बाद अगले दिन का इंतज़ार करते हैं कि अगले दिन इनके पास कोई खाना आए और उस खाने को खा के अपना पेट जो है वो बढ़ सके। मेरे साथ जो इस गाँव के शहरी हैं वो भी मौजूद हैं। जो भाईजान बताएँ कि अब आप काम के लिए बाहर नहीं जा सकते, नहीं जी तो कैसे फिर गुजर बसर करते हैं? जो अखराजात हैं वो कैसे पूरे हो रहे हैं? बिल वगैरह आ रहे हैं? सर बिल आए हैं, इधर वाम ने लाया ने, अभी तारे नहीं हैं। कैसे तारे जेब में बिजली आती नहीं है, बिल आ रहे हैं। बिल खंबे सर सारे डिग पे हैं उधर दरिया में। कितना बिल आया? सर बिल आया 800, ऐसे ऐसे लोग हैं, जितना जितना लोगों का साड़ा उतना उतना आया है। अच्छा मुझे बताएं कि इतने दिनों से 2-2.5 माह 3 माह गुजर गए हैं, हाँ जी। इतने दिनों में आपके पास कितने लोग आए हैं? लोग सर आए हैं, हुकूमत के तो कोई भी नहीं आए हैं सर। जो ये लोग हैं ना मुजाहिद लोग वाम की खिदमत कर रहे हैं वो ही आए हैं 1-2-3 बार। मुजाहिद लोग आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। भाईजान आप भी आए हैं? ये नाते हैं। नहीं जी, मैं सामान लेके आया हूँ आज। अच्छा डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए हैं कि जो मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं इनका चेकअप किया जाएगा, इनको अदवायात फ्री में दी जाएंगी? जी इंशाल्लाह। हम पहले जुमेरात वाले दिन आए हैं, कैंप था हमारा कुरान सुन्नत मूवमेंट की तरफ से। हमने तकरीबन 800 लोगों को चेक किया, 800 लोगों को मेडिसिन फ्री दी हैं, तकरीबन 1100 लोगों को हमने राशन तकसीम किया है। ये बताएं कि हुकूमत तो ये कह रही है कि हमने जगह जगह पे जो है वो कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ पे मेडिसिन भी मिल रही है, वहाँ पे राशन भी मिल रहा है, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। आप यहाँ पे लेके आए, अगर यहाँ पे सब कुछ होता तो आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी पड़नी। सर हुकूमत कर रही है लेकिन वो अपने बलबूते पे पीछे वाली साइड पे ज़्यादा कर रही है। यहाँ पे जितने ज़्यादा शौक़ है लोगों को, लोग अपनी जो है कि जमा पूंजी इकट्ठी जिन्होंने की हुई है वो आपके आगे तकसीम करते हैं। तो आज भी लोगों का बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। एलर्जी सबसे ज़्यादा एलर्जी है, उसके बाद डेंगू वबा, टाइफाइड, मलेरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। तो हम तकरीबन 3 दिन पहले यहाँ पे कैंप किया था। अच्छा कि आपने बताया कि ये डेंगू मलेरिया वगैरह और नज़ला ज़ुकाम वगैरह की बीमारियां जो हैं इस पानी की वजह से फैल रही हैं। जी बिल्कुल फैल हुकूमत को इसके लिए भी कोई इक़दामात करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए और आके इनके हालात का जायज़ा लेना चाहिए। ये बहुत गरीब लोग हैं और यहाँ पे बहुत कम सहूलत है। जी आपने सारी बात सुनी। यहाँ पे सहूलियात का जो है फकदान है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि राशन आया है और राशन आते ही कैसे जो है सैकड़ों लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं और मरीम नवाज़ साहबा को चाहिए कि यहाँ पे आएँ और आगे इन आवाम का जो है वो पुरसाने हाल देखें कि कैसे किस हाल में ये जो है यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पे इनके ना तो खाने के लिए कोई चीज़ है और ना पीने के लिए साफ़ पानी। इनका कहना है कि जो आसपास में नलके लगे हुए हैं उनमें भी दरिया सतलुज का गंदा पानी आ रहा है और वही गंदा पानी पीने पे मजबूर हुए हैं और वही पानी पीने की वजह से जो है वो इनको मौजू बीमारियाँ जो हैं वो उसमें मुब्तला हो रहे हैं और बीमारियों की जो है वो देखभाल भी इनको करनी पड़ रही है। बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं और आगे इन लोगों को अदवायात दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई सहूलियत नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं हुकूमत यहाँ पे कब तक आती है और इनको राशन वगैरह मुहैया किया जाता है, इनके रास्ते क्लियर किए जाते हैं या ऐसे ही ये दर बदर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।